नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। आज के समाचार में है त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच का राज्य स्तरीय सम्मेलन राजधानी में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन IMA हाउस में आयोजित हुआ, जिसमें मंच के संयोजक अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन और त्रिपुरा अधिनियम कर्मचारी मंच के आवाहन रतन देवनाथ सहित अन्य उपस्थित थे। इस दिन राज्य भर में आए अनुमति कर्मचारी सम्मेलन में शामिल हुए। त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच की राज्य स्तरीय सम्मेलन रविवार को राजधानी में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अगरतला स्थित IMA हाउस में आयोजित हुआ। सम्मेलन में मंच के संयोजक एवं अभिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन और मंच के सहायक रतन देवनाथ सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। राज्य भर में आए अनुमति कर्मचारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बारे में अभिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इस राज्य के अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। 6-7 বছর যাবত ওরা এই বঞ্চিত। গত 7 বছরে এই রাজ্যের একজন অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা হয়নি। গত 7 বছরে এই রাজ্যের একজন অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা হয়নি। তার অনেকেই অবসরে গেছেন, কাঁদতে কাঁদতে গেছেন, চোখের জল ফেলতে ফেলতে অবসরে গেছে শূন্য হাতে। এই বঞ্চনা, এই কান্নার অবসান করার জন্য এখানে আমরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা 7 বছর অপেক্ষা করেছি। আমরা আশা করেছিলাম সরকার 30 জুলাই যে সার্কুলার বাতিল করেছে, আমরা আশা করেছিলাম সরকারের সুবুদ্ধি উদয় হবে, আবার সার্কুলার জারি করবে, 2007-এর স্কিম পুনরায় চালু করবে। কিন্তু সরকার 7 বছর এটা করলো না। আমরা সরকারকে অনেক সময় দিয়েছি, আমরা অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে বলে আজকে এখানে অনিয়মিত কর্মচারীরা দলে দলে সমবেত হয়েছেন, দলবদ্ধ নির্বিশেষে। এই সরকারের আমলে যেমন বঞ্চিত হয়েছে, তার আগের সরকারের আমলে কিন্তু মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা বারবার দেখেছি আমি কোন সরকার আগের সরকারের স্কিম ছিল, আমরা সরকার বুঝি না। 2007-8-এ সরকারের স্কিম করেছিল, তখন 10 বছর হলে পরে নিয়মিতকরণ করার দাবি করা যেত, আদালতে মামলা করা যেত। আর এই সরকার এসে অনিয়মিত কর্মচারীদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছে। তাদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেওয়ার জন্য 2018 সার্কুলার জারি করছে। এখন মামলা করা যায় না। বামফ্রন্ট আমলে অনিয়মিত কর্মচারীরা 10 বছর হওয়ার পর নিয়মিতকরণ না হলে আদালত থেকে নিয়মিতকরণ হতো। আমি মামলা করেছি, 300-400 অনিয়মিত কর্মচারী নিয়মিতকরণ হয়েছে, কারণ স্কিम ছিল, সরকারের সার্কুলার ছিল। अनियमित कर्मचारी के सम्मेलन को लेकर कर्मचारियों में अलग उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। रविवार सुबह विशालगढ़ इंदिरा चौमुखी सड़क पर एक तेजी रफ्तार मारुति कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में साइकिल सवार संजीत चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सूचना पाकर अग्निशम विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को बचाया और तत्काल उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर के बाद मारुति कार चालक घटनास्थल से भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद विशालगढ़ थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची। फिलहाल घायल व्यक्ति स्थिति नाजुक बताई जा रही। इंडिया चौमने থেকে একটা কল আসলো, এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। নেওয়ার জন্য থেকে যে রুটটা গেছে ইন্ডিয়া চৌমনি থেকে এক ভদ্রলোকের বাইসাইকেল ছিল, মারুতি গাড়ি বাড়ি দেওয়া, খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, বাইকে গেছে। আমরা রেস্কিউ করে বিশালগড় গভর্নমেন্ট করে বোঝাই। আহত ব্যক্তির নাম কি? আহত ব্যক্তির নাম হলো সঞ্জিত চৌধুরী। কিরকম অবস্থা? অবস্থা খুব সিরিয়াস হয়। সম্ভবত পেনশনে এসে 7-8 বছর হয়েছে। গাড়ির নাম্বার পাওয়া গেছে? গাড়ির নাম্বারটা আমরা পাইছি না। एसोसिएशन ऑफ सर्विस इंजीनियर्स ऑफ त्रिपुरा के तत्वाधान में राजधानी के सुकांत अकेडमी प्रेक्षागृह में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का औपचारिक उद्घाटन राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने किया। इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ सर्विस इंजीनियर्स ऑफ त्रिपुरा के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य के कलाकारों ने संगीत प्रस्तुत कर माहौल और खास बना दिया। संगठन के 11वीं वार्षिक आम सभा के उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। Thanks to the generosity of donors like you, countless patients receive the life-saving transfusion they need. The engineers community has shown remarkable enthusiasm and dedication to blood donations.
Your efforts are a shining example of the power of collective action and the impact that individuals can have when they come together for a noble cause. I am proud to acknowledge the state's progress in promoting blood donation and ensuring a safe and adequate blood supply. अभयनगर पुल पर दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर, एक चालक घायल हो गया जिसे तुरंत जीबी अस्पताल ले जाया गया। एक गाड़ी भावना ठाकुर चौमुखी से अभयनगर की ओर आ रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी अभयनगर के भगवान ठाकुर चौमुखी की ओर जा रही थी, तभी दुर्घटना हो गई। गहरी रात राजधानी के अभयनगर पुल पर दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हुई। इस दुर्घटना में एक गाड़ी चालक घायल हो गया। दमकल कर्मियों ने उसे तुरंत जीबी अस्पताल पहुंचाया। एक गाड़ी भगवान ठाकुर चौमुनी से अभयनगर की ओर जा रही थी और दूसरी गाड़ी अभयनगर से भगवान ठाकुर चौमुनी की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेजी गति से वाहन चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई। घायल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभयनगर ब्रिज से गाड़ी एक्सीडेंट हुई, আমরা কন্ট্রোল রুম থেকে কোয়া হয়েছে, তো আমরা আইসি তারারে হেল্প করতাম আগে। হ্যাঁ, এরপরে এখন থানাতে জানা হয়েছে, থানাতে জানানো হয়েছে, আইবে থানা আইতেছে। কেউ কি আহত হয়েছে? আহত হয়েছে, আহত তো আমরা আইয়া পাইছি না, কিন্তু তারা নিয়ে গেছে হসপিটালে। আমরা আইয়া পাইছি শুধু দুইটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট, এগুলো ব্রিজের এগুলো আছে আর কি। গাড়ি কি বেশি জোরে ছিল? গাড়ি তো তারা তো কইতেছে, আমরা তো আইয়া শুধু পাইছি গাড়ি দুইটা এগুলো অ্যাক্সিডেন্ট। এরপরে একজন ড্রাইভার বুটে ইনজুর্ড হয়েছে, এটা তারা লইয়া গেছে হসপিটালে। ইনজুর্ড পারসন তো আমরা পাইছে না, ওখানে থানা পাঠি এটা ইনভেস্টিগেশন করান আইতেছে। এরকম রাত্রেবেলা এত দুর্ঘটনা, মানে এই বিষয়টা মানে কিভাবে দেখছি? বিষয়টা তো আজকে তো এখানে প্রোগ্রাম আছে পাঁচটা বলি এখানে, এই কারণে তারা গাড়ি একটু জাম আসলো মনে হয় বিরাবির। उधर दुर्घटना में दोनों गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। पुलिस ने गाड़ियों को जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। तेलियामुरा उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जंगल हाथियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों के भय के साए के दिन गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बीती रात उत्तर कृष्णपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक के बाद एक किसानों की सब्जी की खेती और घरों पर हमला किया। कई छोटे किसानों के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। साथ ही रात के अंधेरे में घरों के घुसकर हाथियों ने बड़ी मात्रा में धान खा लिया और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बीते 10-15 वर्षों में यह समस्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन द्वारा इस समस्या का समाधान के लिए कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्र के लोग जल्द से जल्द प्रशासन के प्रभावी और मजबूत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ঘটনা জঙ্গলে বন্যা হাতি আয় ক্ষতি করতেছে কয়েকদিন ধরে উত্তর কৃষ্ণপুর আর কি। আপনি কি কি ক্ষতি করছে? আমরা তো এই বাগান নষ্ট করতেছে, এরপরে বাড়িতে ধান খাইছে, কালকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধান খাইছে। এর মধ্যে মানে কি কি ফসল নষ্ট করছে? ফসল তো ওই তো কলা গাছ, এরপর ওই লাউয়ের সার চুর ভাঙ্গিয়া জিতা ভাই তো নষ্ট করে। কয়টা ছিল? একটা। কোন সময় ছিল এটা? এটা কালকে আইসে রাত্র 3:30টার সময় পাইছি। আইসে আরো আগুই আই গাছ গুছ খাইতেছে, 3:30টার সময় উঠটা দিয়ে কেন এইটা খাইতেছে আর কি। যা সকালে 5টার সময় উঠটা ধান 3-4 বস্তা আছে, 3 বস্তা লিয়ে ফেরা আর 1 বস্তা কে নিছে? গণেশে। এটা কোন জায়গাটা? এটা কৃষ্ণপুর। কয়টা আইছিল? একটা। বড় তো আইছে না কেউ? আইছে বড় আইছে আর কি। राजधानी के 9 दिंगत क्लब की पहल पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शिशु उत्सव आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव 4 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा, यानी ये 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा। शिशु उत्सव में नृत्य, संगीत, योग, शास्त्रीय संगीत जैसी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राजधानी के 9 दिंगत क्लब की पहल पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शिशु उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
यह उत्सव 4 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा, यानी 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा। शिशु उत्सव में नृत्य, संगीत, योग और शास्त्रीय संगीत सहित कई गतिविधियां होंगी। रविवार को नवदिगंत सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में क्लब के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय आगामी शिशु उत्सव था। क्लब के सदस्यों ने बताया कि बच्चों के लिए यह एक जीवित और शिक्षाप्रद उत्सव होगा। यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन प्रदान करेगा, बल्कि बच्चों की रचनात्मक और प्रतिभा में विकास के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। उत्सव में चित्रकला, कवि पाठ, गायन और नृत्य जैसी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। साथ ही नाट्य प्रदर्शन, स्थानीय पारंपरिक खेल और शिक्षा प्राय कार्यशालाएं भी इसका हिस्सा होंगी। क्लब के सदस्यों का कहना है कि यह उत्सव बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनमें सहयोग और सामाजिक संबंध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लब के अध्यक्ष ने उत्सव के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके आनंद और शिक्षा प्राय अनुभवों के लिए ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लब का उद्देश्य बच्चों के रचनात्मक को प्रोत्साहित करना और समाज के सकारात्मक बदलाव लाना है। এই বছর 25তম শিশু উৎসব উদযাপন করব আমরা রজত জয়ন্তী বর্ষ। তার জন্য আমরা একটু ব্যাপক হারে একটু বেশি বিশাল আকারে করছি। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেকটা বাড়িয়েছি আমরা। তার জন্য আমরা সবাই যাতে সমস্ত শিশু যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, খবরটা যাতে সবার কাছে যায়, তার জন্য আমরা আপনাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য এখানে আপনাদের ডেকেছি। তা আমাদের শিশু উৎসব এবার শুরু হবে 4 জানুয়ারি 2025 থেকে। এটা চলবে 10 दिन চলবে। गौरतलब है कि शिशु उत्सव 4 जनवरी को नवदिगंत सामाजिक संस्था के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव स्थानीय बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। शिशु उत्सव के आयोजन को लेकर क्लब के सदस्यों में खास उत्साह देखा जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की देश की प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने रविवार सुबह वे अगरतला से उदयपुर के लिए रवाना हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंची। श्रेया घोषाल की उपस्थिति को लेकर उदयपुर में माताबाड़ी क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान माताबाड़ी क्षेत्र के विधायक अभिषेक देव राय और प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक ने इस प्रवक्ता गायिका का सम्मान किया। श्रेया घोषाल को देखने के लिए माताबाड़ी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। उल्लेखनीय है कि श्रेया घोषाल शुक्रवार को त्रिपुरा पहुंची थी। अभी के समाचार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज रियल टाइम। नमस्कार।